Welcome back, everyone. Data science is a multidisciplinary field that involves using statistical and computational methods to extract insights and knowledge from data science. So, all of you who are new here, let me introduce myself. I am Muskan Arora and I'll be your host today. And today we have two of the most qualified people to help you explore all the possibilities of data science as a domain. I would like to introduce you to the speakers for today. So, first speaker with us we have is Deepika. Deepika D is a talented individual passionate about technology and innovation. Demonstrated exceptional talents and potential in computer science as a Microsoft NG mentee for 2022. She contributed to Girl Scripts Summer of Code 2022 and earned her skills in problem solving, critical thinking, and collaboration by participating in various hackathons such as SIS and Datalytics. Another amazing senior we have with us today is Surbhi Sinha. Surbhi is a highly accomplished individual passionate about technology and innovation, as demonstrated by her Microsoft Engage mentee for 2022 selection and upcoming Microsoft internship in 2023. She's an expert in Azure Cloud and an exceptional problem solver, having solved over 400 questions on LeetCode. She also worked with various tech stacks, including web development, cybersecurity, cloud computing, and data science. She even worked on Google Cloud architecture and led the team Brute Force in Smart India Hackathon 2022, becoming semi-finalist. Now, not wasting much further time, I would like to hand over the session to the amazing speakers we have with us. Hello everyone. I hope you all are well and you all are enjoying our Tech Accelerate sessions. I hope it may help you to explore various domains and give you a right path to choose your career. And I would like to start with the session without delay. Today we are going to discuss about the data science. What are the main agenda we are going to discuss in it? The data science. Then after that we are going to discuss what is the life cycle of data science, what are the various parts of a data science and steps basically. After that we are going to discuss about the application of data science, what are the various examples in the field of data science. Then we are going to discuss what are the importance of data science, what are the various roadmap of data science. Then we like to contribute some points from our experience to help your career. Then move to next. With good data and the right technology, people and the institution today can still solve hard problems. I choose this text basically to help you to know why the data science and the AI, ML, these fields are going to be in a more scope, right? अगर मैं बात करूं 19th सेंचुरी की, तो उस टाइम पे जो डाटा होता था वो हमारा बिग डाटा के फॉर्म में नहीं होता था बेसिकली, राइट? तो वो जो डाटा है हमारा, कह सकते हैं वो हमारा 100, 200, 300 रो डाटा के फॉर्म में होता था. एंड वो जो रो डाटा 200, 203 रोज का डाटा था, उसे हम मैनुअली एक्सेल के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, उसके थ्रू उसको कर पाते थे. लेकिन जैसे जैसे हमारे 1990s में बात करें, वहां पे उस टाइम पे इंटरनेट आया था. देन इंटरनेट आने के बाद हमारे वेरियस ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए जैसे गूगल हो गया, एंड यू कैन से हमारा बाद में यूट्यूब आया 2005 में, फेसबुक आया 2004 में. तो जैसे जैसे हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई भी, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन्होंने हमारे डाटा को इतना बढ़ा दिया कि उसको एक एक्सेल के थ्रू मैनुअली वर्क करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया. तो उसको इजी करने के लिए एक गुड डाटा को राइट टेक्नोलॉजी के थ्रू पीपल ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई डाटा साइंस, जो कि हमें हेल्प करती है उन डाटा पे काम करने के लिए. तो डाटा साइंस मैं कह सकती हूँ कि डाटा साइंस
एक ऐसी स्टडी है जो कि एक मीनिंगफुल, बेसिकली कोई भी डाटा हमारे पास है उसको एक मीनिंगफुल बिजनेस में कोई डाटा हम यूज कर रहे हैं उसको एक मीनिंगफुल डाटा में एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जब हम 5th क्लास में थे तो हमारी जो रिपोर्ट कार्ड है वो सिंगल थी, लेकिन जब हम 10th में आए तो हमारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बढ़ गए। देन हम 12th में आए तो हमारे डॉक्यूमेंट बढ़ गए। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो डाटा भी एक ऐसी चीज है जो कि टाइम टू टाइम बढ़ता ही है, कभी घटता नहीं है। तो डाटा साइंस का जो स्कोप है वो टाइम टू टाइम बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जो रो डाटा है हमारे पास आता जा रहा है और उस रो डाटा को हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। एंड उस रो डाटा से एक ऐसा कंक्लूजन निकाल रहे हैं जो कि हमारे किसी भी बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो उसमें हेल्प कर रहा है। कोई भी हमारी फील्ड है उसमें वो हमें हेल्प कर रहा है। अब ये जो डाटा साइंस है ये एक ऐसी अप्रोच है बेसिकली जो कि हमें हेल्प कर रही है कि मैथमेटिक्स को यूज करके हम वेरियस स्टैटिस्टिक्स, मीन, मोड, इन सबको यूज करके हम एक बड़े डाटा को इनसाइटफुल मीनिंग दे रहे हैं। तो डाटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक इन्हीं सभी फील्ड्स को, स्टैटिस्टिक्स हो गए, मैथमेटिक्स हो गए, इन सबको यूज करके एक मीनिंगफुल वैल्यूएबल आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि उस डाटा को यूज कर रहा है। जैसे मैंने कोई रेस्टोरेंट लिया, सपोज रेस्टोरेंट है मेरा, एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है न्यूयॉर्क में, देन दूसरा मेरा इंडिया में है। न्यूयॉर्क वाला जो रेस्टोरेंट है उसमें मेरा क्या हो रहा है, मैंने अपना डाटा देखा दोनों का, न्यूयॉर्क का भी और इंडिया का भी। जो रेस्टोरेंट है उसका मैंने डाटा लिया और उस डाटा को मैंने एनुअली जो मंथ वाइज मेरी सेल्स थी उनको मैंने चेक करा। उस डाटा में बार ग्राफ था मेरा, ठीक है। बार ग्राफ को मैंने चेक किया तो बार ग्राफ में मेरा आया कि मेरी समर की जो न्यूयॉर्क वाली है वहां पे इतनी सेल नहीं हो रही है। तो मैंने बेसिकली क्या करा, उस डाटा को उठाया, फिर उसको देखा, देखने के बाद मैंने देखा कि मेरी वहां पे नहीं है। तो मैं उस डाटा को उठाने का, डाटा साइंस का यही काम है कि वो उस डाटा को उठाने के बाद, कलेक्ट करने के बाद, बेसिकली उसको क्लीन करने के बाद, एनालाइज करने के बाद वो हमें ये प्रोवाइड कर रही है एक ऐसा प्रेडिक्शन कि मैं सोच रही हूँ कि न्यूयॉर्क में अगर मुझे उस टाइम पे अपनी सेल्स को बढ़ाना है तो मुझे कुछ वाउचर्स वहां पे रिलीज करने पड़ेंगे, मुझे वहां पे कुछ ऐसी प्रमोशंस करने पड़ेंगे जिससे कि मेरी वहां पे सेल्स उस टाइम पे बढ़ जाए। तो वो सेल्स बढ़ाने के लिए ही, ऐसे ही अपने बिजनेस को फुलफिल अच्छा बनाने के लिए कंपनीज क्या करती है, उनके पास, जैसे अगर मैं बात करूं, हम आजकल इतने रिकमेंडेशन जैसे कैसे हो रहा है, मैं नेटफ्लिक्स चला रही हूँ, नेटफ्लिक्स मैंने चलाया तो उस पर मैंने कोई हॉरर मूवी देखी, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं नेटफ्लिक्स चलाऊंगी तो मुझे हॉरर मूवी जो होती हैं वही वो रिकमेंड करेगा। तो ये काम कहाँ हो रहा है, डाटा साइंस में। क्यों? क्योंकि मैंने पहले नेटफ्लिक्स जब चलाया तो मैंने उसको एक फुटप्रिंट दे दिया अपना कि मैं डाटा साइंस में मैंने मतलब मैंने ये सर्च किया था बेसिकली, और सर्च इंजन ने उसको पीछे से डाटा दे दिया और डाटा के बाद उसने मेरे को पीछे से उस रिकमेंड कर दिया। तो बेसिकली डाटा साइंस का यही होता है। अब इसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स में क्या है कि मैं सबसे पहले डाटा को अंडरस्टैंड करती हूँ, जो मेरी प्रॉब्लम है मैंने उसको देखा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, फिर मैंने उसके अकॉर्डिंगली डाटा को बनाना स्टार्ट किया, फिर उस डाटा को एनालाइज करा, एनालाइज करने के बाद मैंने उसको मॉडल, देन इवेल्युएट, फिर उसको मैं डिप्लॉय करने की सोचती हूँ। अगर मैं बात करूँ हमारे ले लेते हैं हम लैटिट्यूड, मतलब मैं कोई भी ले रही हूँ डाटा और मैंने उसको देखा कि मेरी संडे को मेट्रो में, अगर मैं बात करूँ मेट्रो में संडे को जो लोग हैं वो कम है, लेकिन वर्किंग डेज जो है हमारे मंडे टू फ्राइडे उसमें ज़्यादा है। तो मैंने अपने डाटा को ऐसे से मतलब मैंने उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा, फिर मैंने उनके जो मेट्रो के प्राइसेस होते हैं, तो मैंने क्या करा, अपने मेट्रो का जो काम है वो बढ़ाने के लिए मैंने मंडे टू फ्राइडे के जो प्राइसेस हैं वो अलग कर दिए, देन सैटरडे संडे। तो ये उन्होंने कैसे डिसाइड करा, उन्होंने बेसिकली ये देखा कि लोग किस टाइम पे ज्यादा आते हैं, लोग इस टाइम पे ज्यादा, तो अपना बेनिफिट करने के लिए उन्होंने उस टाइमिंग पे प्राइस बढ़ा दिया। अगर हम देखेंगे, अगर मेट्रो में जब हम ट्रेवल करते हैं तो मॉर्निंग का प्राइस कुछ और होता है, इवनिंग का कुछ और होता है, एंड आफ्टरनून का कुछ और होता है। इसके पीछे रीजन यही है कि वो क्या करते हैं, वो बेसिकली ये देखते हैं कि डाटा जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आई, जो कार्ड हम पंच कर रहे हैं, तो उससे उन्होंने नंबर काउंट लिए कि कितने हैं, फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि इस टाइम पे तो लोग बहुत कम है, तो इस टाइम पे तो प्राइस बढ़ाने का कुछ है नहीं, लेकिन जिस टाइम पे लोग ज्यादा है तो उस टाइम का प्राइस वो बढ़ा देते हैं। तो कभी अगर हम सेम रूट पे जाते हैं तो देखना कि दोनों टाइम पे अलग अलग प्राइस मिलते हैं। ये होता है। सुरभि,
if you want to see something on it. So, hello people, how is everyone? एक बार रेज हैंड कर दो या कुछ तो कर दो तो पता चले कि हाँ लोग बैठे हैं यहाँ पे। हेलो देवराज, हेलो वैभव, हाय हाय हाय, हेलो एवरीवन। सो कैसा चल रहा है अभी तक? सब बढ़िया? अभी तक समझ में आया तुम्हें सेशन? बताओ बताओ। चल, वेरी नाइस। तो यार एक्चुअली में डेटा साइंस ना, अगर मैं तुम्हें और आसान भाषा में बताऊं तो क्या है, बेसिकली आज के डेट में तुम्हारी मतलब अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन ले तो कितनी हो गई है? 8 बिलियन, है ना? अब ये जो 8 बिलियन लोग हैं ये कहीं ना कहीं में किसी न किसी तरीके से इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब इन 8 बिलियन लोग जो हैं इनका डेटा, तो खुद सोचो कितना ह्यूज डेटा होगा, तुम्हारा पर्सनल डेटा कितना ह्यूज होता है। ठीक है। अब इसके अलावा काफी सेंसिटिव डेटा भी है, तुम्हारे गवर्नमेंट आईडीज हैं, तुम्हारे हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारा ऐसा कॉम्प्लेक्स डेटा है ना, ठीक है, जो बंडल डाटा है। ठीक है। तो डेटा साइंस का कुछ और काम नहीं होता। डेटा साइंस को मैं अगर सबसे आसान भाषा में बोलूं तो ये है कि तुम्हारा बंडल्ड डेटा एक विजुअलाइज फॉर्मेट में तुम्हारे साथ सामने हो। दिस इज द मेन फीचर, अगर तुम्हें सबसे आसान भाषा में समझना है तो। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने कभी गवर्नमेंट का वो ऐप देखा है, डिजी लॉकर करके? ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, बेसिकली तुम अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। एक अच्छा विजुअलाइजेशन, एक अच्छा यूआई है जिसकी वजह से तुम सारे इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हो। तुम्हें बार बार इधर उधर, पहले जैसे बिस्तर के नीचे तुम डॉक्यूमेंट्स रख देते थे, है ना, वो नहीं होता। ठीक है। एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। ठीक है। तो डेटा को आज के डेट में एक्सेस करना, उसको मैनिपुलेट करना, उसको यूज करना ताकि तुम उसको आगे इस्तेमाल कर सको, इज everything is every discipline that we can follow in data science. Yeah, come on, Deepika, further. या तो एप्लीकेशंस क्या क्या है डेटा साइंस की? ठीक है। तो सबसे पहले जैसे एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर हम एग्जांपल दे रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है। तो रिकमेंडेशन सिस्टम, वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेशन सिस्टम का एग्जांपल होगा कि भाई तुम्हारा नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स के फिल्टर्स, तुम्हारे इंस्टाग्राम के फिल्टर्स, वो क्या करता है, बेसिकली उनके पास एक बहुत ह्यूज डेटा है। ठीक है। अब जैसे कोई तुमने जनरल लगाया कि यार हॉरर मूवीज चाहिए मेरे को, ठीक है, तो हॉरर मूवीज के लिए उसके पास एक बहुत डिफरेंट जनरा होगा। ठीक है। और बहुत सारे फिल्म्स के ऊपर वो टैग लगा हुआ कि हॉरर है, हॉरर है, हॉरर है। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक क्वेरी चलेगी सिंपल सी कि तुमने क्या किया है कि एक इनपुट लगाया, ठीक है, बहुत बड़े डेटा सेट में जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पर वो सारी चीजें एक बार में एक्सेस हुई हैं। ठीक है। एंड देन उसके अकॉर्डिंग तुम्हें आउटपुट जो है यूआई यूएक्स पे दिख रहा है। ये सारी चीजें किसमें होती है? रिकमेंडेशन सिस्टम में। और ये आज के डेट में हर जगह, गूगल, नेटफ्लिक्स, amazon, AWS, इवन एज योर्स एंड जो काफी हाई लेवल के जो काम है ना, जो चीज आपने देख नहीं रहे हो, जो एक्चुअली में बिजनेसेस यूज कर रहे हैं, नॉट लाइक जो कस्टमर नहीं, एक्चुअली बिजनेस, तो उसमें भी बहुत ज्यादा काम आता है डेटा साइंस का। ऑटोमेशन एंड डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली बात है, तुम आज की डेट में कोई भी डिसीजन लेते हो तुम अपने प्रायर डेटा से लेते हो। ठीक है। जब तक तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जब तक तुम्हें एक ऑलरेडी इनपुट के बाद आउटपुट क्या आएगा ये नहीं पता, तुम नहीं ले सकते कोई भी आज की डेट में डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। तो इसमें भी डेटा साइंस बहुत काम आता है, क्योंकि यार डेटा ऐसी चीज है ना, ठीक है, कि आज आप कर रहे हो, ठीक है, कल को वही सेम डेटा, वही सेम पैटर्न रिपीट होंगे, एवरीथिंग रिपीट्स, ये याद रखना। ठीक है। एनोमली डिटेक्शन, अब तुम्हारे पास क्या है, एनोमली डिटेक्शन बहुत अच्छा एग्जांपल होगा, जैसे कि तुम्हारे पास 100 डेटा है और उन सबका इनपुट आउटपुट टेस्टिंग का काम अगर तुमने देखा होगा कभी, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट्स के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आउटपुट्स आता है। ठीक है। जब तुम डीएसए वगैरह के क्वेश्चन लिटपुट वगैरह पे सॉल्व करते हो तो उसमें भी यही होता है। ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है कि तुमने एक डेटा सेट दिया, ठीक है, सारा डेटा मैच कर रहा है, बट एक एक जो टेस्ट केस है या एक जो है वो नहीं मैच कर रहा। ठीक है। एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर एनोमली डिटेक्शन के लिए भी डेटा साइंस का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर तुम चाहो तुम्हें पता होगा कि नहीं पता होगा, बट ये जो चीजें है ना, ये एज्योर्स, क्लाउड्स, इन सब चीजों में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है डेली लाइफ में। अगर तुम्हें सबसे इजी वे में बताया जाए तो ये समझ लो कि लीड कोड पे क्वेश्चन तुम्हारा मैच नहीं कर रहा, तो क्या करना है, बोलो एक बहुत बड़ा डेटा सेट होता है इनपुट्स का, उसके लिए उनके एक डिजायर्ड आउटपुट सेट्स होते हैं। ठीक है। और वहां पर बस वो चेकिंग कर रहा होता है, बट ये इनपुट सेट्स को छाटना, इनपुट सेट के अकॉर्डिंग आउटपुट को छाटना, ठीक है, तो ये काम किसका है? ये डेटा साइंस का है। फोरकास्टिंग, बेसिकली तुम्हारे प्रायर डिसीजंस जो हैं, तुमने जो प्रायर डेटा लिया हुआ है उसी के बेस पर तुम डिसीजन लोगे, है ना।
पैटर्न डिटेक्शन, ठीक है। हर प्रोसेस एक पैटर्न फॉलो करती है, चाहे वो सिंपल लॉगिन प्रोसेस हो, चाहे वो सिंपल साइन अप प्रोसेस हो, चाहे वो सिंपल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो, कोई भी सिंपल ऑथेंटिकेशन या ऐसा कोई प्रोसेस होता है वो एक पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसमें आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट पहुंचने के लिए 3-4 इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो जो पैटर्न सेट होते हैं ना, ये पैटर्न्स भी डेटा पर ही सेट किए जाते हैं, ठीक है। दिल्ली मेट्रो जैसे अभी दीपिका ने बताया था, इट्स वेरी 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 क्लासिक एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप अब जैसे स्कूल के बच्चों को जाना है, उनको सपोर्ट करना है, तो स्कूल के बच्चों के लिए एक 8 बजे तक का टाइम सेट कर रखा है कि भाई यहाँ पर आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये पता कैसे चलता है? डेटा पे, उनके प्रायर एक्सपीरियंस पे, है ना। तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा साइंस। और इसकी फर्दर सिर्फ यही नहीं है, आज की डेट में डेटा इतना वास्ट, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना ज्यादा बंडल्ड अप होता जा रहा है ना कि ये फील्ड कहीं नहीं जाने वाली। एक बार को अगर आपको ऐसा लगे कि डेवलपमेंट में, अगर ऐप डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट भी आज की डेट में है काफी ज्यादा, बट टेक्नोलॉजी न्यू न्यू होती जा रही है। आज की डेट में सब कुछ वेब 3.0 पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। बट डेटा यार, डेटा कहीं नहीं जाने वाला। आपको आज से 100 साल पुराना डेटा भी अगर आज की डेट में मिल जाए, दैट इज ए काइंड ऑफ डायमंड फॉर अस। क्योंकि ये जो डेटा है ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो इसमें जॉब्स तो नहीं जाने वाली, ऑब्वियस सी बात है। इसमें बहुत ही ज्यादा आगे जाके तुम्हें मतलब काम आने वाली चीजें, ठीक है। और जॉब्स तो नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम बिना डेटा के तो आज की डेट में कोई काम नहीं कर सकते। और तुम्हें पता भी होगा आज की डेट में अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज की बात की जाए, ठीक है, तो सिर्फ डेटा साइंस के अंदर अंदर डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल होती है, डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल होती है, डेटा डिजाइनर्स की प्रोफाइल होती है, ठीक है। और डेटा फॉर्मेटर्स भी नाम की एक चीज होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये कहीं नहीं जाने वाली है, एटलीस्ट डेटा साइंस के फील्ड में तो, ठीक है। तो अगर तुम्हें एग्जाम्पल देखना है तो वी कैन शो यू आवर ओन प्रोजेक्ट्स विच मी एंड दीपिका prepared in our own Engage program, Microsoft Engage. So can you play that? Yeah, sure. I hope वीडियो सबको दिखती होगी। Is video audible to everyone? क्या सुरभि? Video is audible to everyone? Just react, guys. ऑडिबल है ना? Video. I don't think so. Not audible, I guess. Not audible. चलो कोई नहीं, you can just share the GitHub profile. I'll just explain it myself. या तो यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट है ना, ये एक्चुअली क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने ऐसे लिखा था logicgeek.com। तो इसमें क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। तुम्हारे पास जो इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया की, उसमें कितनी सारी कार्स है, फोर व्हीलर कार्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही बड़ा ह्यूज डेटा सेट है। इट मीन्स लाइक अराउंड 3 लाख लाइन्स ऑफ कोड, एक्चुअली डेटा 3 लाख लाइन्स ऑफ डेटा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर ये जो डेटा है ये हमें एक्सेल शीट में गिवन है, ठीक है। अब इस एक्सेल शीट का क्या करना है, क्योंकि भाई किसी भी बंदे को अगर कोई पर्टिकुलर कार के बारे में रिसर्च करनी है, तो ये वो नॉट लाइक वो 3 लाख लाइन का एक एक्सेल शीट उठाएगा और उसमें से उसका डेटा छाटेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, हम यहाँ पर बाय यूजिंग पाइथन एंड एवरी डेटा साइंस का जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हम उस बंडल डेटा से एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने वाले एक डैशबोर्ड तैयार कर सके, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्रॉल डाउन, राइट, स्क्रॉल डाउन, डाउन डाउन, या Overview. ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तुम्हें लॉगिन ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन ऑथेंटिकेशन के लिए क्या होता है कि तुम्हें अपना एक पर्टिकुलर इनपुट डालना है, साइन अप एंड पासवर्ड। देन इसके बाद ये आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, या अब आपको सबसे पहले ये दिख रहा होगा, ये वाला डैशबोर्ड,
ठीक है। अब इस डैशबोर्ड में है क्या, जो सबसे पहली चीज है ना, साइड में आपको जो बार दिख रहा है, बार, वो है क्या कि यहाँ पर कार के नेम्स है। ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, जब भी कोई कार खरीदने जाता है ना, तो वो नेम से डिसाइड करता है। ठीक है, नेम से डिसाइड करता है। तो क्या होगा यहाँ पर कि अगर आपको BMW की कार लेनी, ठीक है, BMW की कार लेनी है, होंडा की कार लेनी है, आप सिंपली जाओ उस कार पे क्लिक करो, ठीक है, या उस ब्रांड पे क्लिक करो, ठीक है, एंड देन व्हाट यू हैव इज लाइक, यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही होगी ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी टेबल जो दिख रही है ना, इसमें क्या होगा कि एवरीथिंग एवरीथिंग, ठीक है, उसका व्हील सिस्टम, उसका क्या बोलते हैं, मॉडल, उसका वेरिएंट, सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ना एक पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर काफी अच्छे डिसीजन ले सकते हो। इसमें बार ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, जो कि आपको और ज्यादा इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो नीचे वाला चार्ट है, उसमें क्या एज पर प्राइस उसका इंजन का सीसी कितना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपको डेटा की मदद से विजुअलाइज करने में, डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। नीचे 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 की तरफ, या स्टेट वाइज डेटा इज लाइक, क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास इंडिया में, ठीक है, इंडिया में हर स्टेट की परचेजिंग पावर डिफरेंट है। ठीक है, तो कौन सा स्टेट कितना परचेज कर रहा है, ताकि ये मार्केटर्स के लिए भी है। ठीक है, मार्केटर्स के लिए कि वो किस स्टेट में कितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी रखे, ताकि उनका मॉडल या उनका जो भी कार वेरिएंट है वो ज्यादा सेल हो। ठीक है, तो इस तरीके के डिसीजंस लेने के लिए ना, वंस आई वुड लाइक टू लाइक वी विल शेयर द डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप ये वीडियोस जाके एक बार देख के आना, अगर आपको एग्जांपल में समझना है कि व्हाट इज एक्चुअली डेटा साइंस अबाउट। और सिर्फ यही नहीं है, बहुत कुछ है। ठीक है, बहुत कुछ इसमें, बेसिकली AI ML में जो मशीन ट्रेनिंग होती है, वो भी सब डेटा साइंस की हेल्प से ही होती है। ठीक है, AI ML एंड डेटा साइंस आर सो इंटर को रिलेटेड विद ईच अदर कि दोनों एक दूसरे के बिना तो अधूरे हैं। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू और ऐड कि आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि हम लोग ना कभी कभी क्या करते हैं कि जो चीजें हमें सामने दिख रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज में क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो 4 बंदे कर रहे होंगे, हमें हमें भी वही करना है। ठीक है, बट हमें वो नहीं करना, हमें एक्सप्लोर करना है। कॉलेज के 4 साल इसलिए नहीं होते कि आप यार सिर्फ BSA करो या सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रीम पकड़ लो और उसी में डीप घुस जाओ, क्योंकि जरूरी नहीं है उसमें आपको नौकरी मिलेगी भी नहीं मिलेगी, बट आपको मल्टी डाइवर्सिफाइड होना बहुत जरूरी है। नाउ फर्दर मोर, आगे दीपिका, वी Okay, विल शेयर दिस, या sure, we will share this. और इसी में मैं अपना प्रोजेक्ट भी दिखा रही हूँ। ये या मैंने मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया था, जैसे मैं बता रही थी कि नेटफ्लिक्स वाला एग्जांपल दे रही थी। नेटफ्लिक्स और जो मैंने बनाया है मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, इसमें लिटिल बिट ये डिफरेंस है कि मैं जब न्यू न्यू आई थी इस फील्ड में, तो मेरे को इतना था नहीं कि कंटेंट कोलैबोरेटिव, एमएल में अभी अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने कंटेंट कोलैबोरेटिव एंड हाइब्रिड रिकमेंडेशन के टेक्निक्स बताई हैं। तो उस टाइम पे सिर्फ मैंने कंटेंट पढ़ा था, तो मैंने उसके बेसिस पे अपना प्रोजेक्ट बनाया था। मैंने इसके अंदर क्या करा था बेसिकली कि डाटा सेट को उठाया था। डाटा सेट कैगल से उठाओ, एंड कैगल से उठाने के बाद मैंने उस डाटा सेट को क्लीन कलेक्ट करने के बाद मैंने उसको क्लीन करा, देन उसके बाद मैंने डिफरेंट डिफरेंट कुछ वेक्टर्स यूज करके मैंने उसको इम्प्लीमेंट करा था फाइनली। और उसमें मैंने फ्लास्क यूज करा था उसको फाइनली डिप्लॉय करने के लिए। एंड मैं दिखाऊं अपना फाइनल प्रोजेक्ट तो ऐसा है। ये बिल्कुल लेम है। जब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में थी एंड सेकेंड ईयर मेरा लिटरली स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे मुझे इस फील्ड के बारे में इतना नहीं था, तो मैंने अपना कंटेंट बनाया। और नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स में क्या होता है कि वो हाइब्रिड लेते हैं। हाइब्रिड में क्या होता है कि वो कंटेंट भी यूज करेंगे एंड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग भी। कंटेंट में सिर्फ हम एक यूजर देखते हैं, लेकिन कोलैबोरेटिव में होता है कि हम 2 यूजर्स, मल्टीपल यूजर्स को यूज करते हैं। जैसे अगर कंटेंट की बात करूं तो मैंने कुछ सर्च किया और उसके बेसिस पे रिजल्ट आ गया। लेकिन कोलैबोरेटिव में क्या होगा कि मैंने सर्च किया है और मेरे फ्रेंड के पास चला जाएगा कि ये उसका फ्रेंड है, उसका भी सेम इंटरेस्ट होगा, तो उसको भी ये मैसेज कर दो कि ये वो मूवी देखे। ऐसा कोलैबोरेटिव में होता है। और नेटफ्लिक्स इन दोनों मेथड को यूज करके होता है। मैंने मूवी रिकमेंडेशन में क्या था कि मैं कोई भी मूवी का नेम यहाँ पे एंटर करूंगी तो उससे रिलेटेड मूवी की नेम आ जाएंगे। जैसे अगर मैं डालती हूँ यहाँ पे और मैं सबमिट करती हूँ, तो इसने मेरे को रिकमेंड कर दिया उससे रिलेटेड मूवीज। इसमें हो सकता है कि कुछ डाउनफॉल्स भी हो, क्योंकि उस टाइम पे डाटा सेट जो इतना मुझे क्लीन करना आया मैंने करा, क्या पता आप मुझसे बेटर कर दो। और मैं आप सबको बेसिकली यही रिकमेंड करूंगी कि आज के टाइम में जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे ना,
तो कंटेंट ना यूज करके ट्राई करना कि हाइब्रिड यूज करो डायरेक्ट, क्योंकि कंटेंट और कोलैबोरेटिव दोनों आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ कंटेंट वाली बनाओगे तो सिर्फ कंटेंट आएगा, और कंटेंट वाली की इतनी नहीं है। जब तुम हाइब्रिड बनाओगे ना तो उससे जो फील आएगी ना कि वाह मैंने तो नेटफ्लिक्स जैसा एक प्लेटफॉर्म बना दिया, और वो भी खुद से बनाना। कोड हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो खुद से बनाया होता है ना, एक्सप्लोर करने के बाद किसी चीज को बनाना, वो एक अलग लाइफ की एक्सपीरियंस होता है। तो मैं यही कहूंगी कि बनाना जरूर, क्योंकि रिकमेंडेशन नहीं बनाया डाटा साइंस में आने के बाद, एमएल में आने के बाद, तो क्या ही मजा नहीं आएगा। रिकमेंडेशन बनाओगे तभी मजा आएगा। तो रिकमेंडेशन सिस्टम तो जरूर जरूर ट्राई करना जितना हो सके। अपना खुद एक्सप्लोर करोगे ना, जब जब इस फील्ड में आओगे और उसको यूज करोगे, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे को रिकमेंडेशन सिस्टम तो बनाना ही था। ठीक है, अब सुबह तूने स्क्रीन शेयर करी है? या एक्चुअली मुझे इनको ये भी दिखाना है, लाइक फॉर एग्जांपल देखो, एक दिखा। मिनट, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? Are you able to see my screen? Everyone please react if you are able to see. ओके, मैं बताती हूँ आपको। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा था ना कि जैसे ये जो AI ML DS और ये जो तीन चीजें ना आपस में इतना को रिलेटेड है कि आपको लिटरली डिफरेंस नहीं पता चलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम बोलते हैं ML में और AI में काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब यार इसका इस्तेमाल कैसे करता है? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें लाइक इस तरीके से एक हेट स्पीच दी हुई थी। ठीक है, हेट स्पीच इन सेंस कि आपके पास एक काफी बड़ा डेटा सेट है, आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो बात कही गई है, जो लाइंस है, ठीक है, वो हेट स्पीच है कि नहीं है, मतलब सुसाइडल टेंडेंसी की है कि नहीं है। जैसे कि आपको पता होता है कि आदमी जब कुछ बोलता है इन लाइक उनकी कुछ पर्सनल मेंटल स्टेट्स होती है, तो उसमें वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट बोल सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम उनके ऊपर ये प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि दिस पर्सन इज सुसाइडल और नॉट। ठीक है, तो इस तरीके की जो डेटा प्रोसेसिंग, इस तरीके का जो रिसर्च वर्क होता है ना, उसमें भी डेटा साइंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट यही डेटा साइंस का जो रिजल्ट होता है वो मशीन लर्निंग में जाता है, जिसकी वजह से हम एक मशीन को ट्रेन कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा बंडल डेटा है, आई टोल्ड यू, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, ये जो लाइनें दिख रही है ना यहाँ पर, ये ठीक है, ये 20 मिलियन लाइन्स का डेटा सेट था। 20 मिलियन, इट्स क्वाइट अ गुड नंबर। ठीक है, अब देन उसके बाद उस पे डेटा को सेग्रीगेट करना है कि यार कौन कौन सा डेटा है जो इस तरीके से सुसाइडल हो सकता है, कितने टेक्स्ट हैं एक वर्ड में जो सुसाइडल है। ठीक है, इस तरीके से मतलब चार्ट्स को प्लॉट करना, बार चार्ट्स बनाना, डिसीजन लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं डेटा साइंस के अंदर, और कहीं ना कहीं यही कनेक्शन होता है मशीन लर्निंग में एंड AI ML में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं ना कि हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है, कि ये चीजें छोड़नी है, ये चीजें पकड़नी है, दिस इज द आउटकम ऑफ द पर्टिकुलर कोड। ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल कर करके हम अपने मशीन लर्निंग और AI ML जो होता है उसको ट्रेन करते हैं। और अगर मेरे से कोई ये पूछे कि भाई जैसे आपका सबसे बेस्ट क्या रहेगा, तो अगर आपको करनी है ना डेटा साइंस, तो पाइथन में करो। ठीक है, पाइथन में यू हैव वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल जो आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, और ऐसे जैसे कि पैंडास हो गया। ठीक है, आपको ये पूरा मदद कर सकता है आपके डेटा को रिफाइन करने में। ठीक है, सीबॉर्न हो गया, ठीक है, ये इस तरीके के आपके डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स प्लॉट करने में मदद करता है। इन चार्ट्स को जानना शुरू करो। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं हम लाइक अपने प्रेजेंटेशन की नेक्स्ट पॉइंट पे। तो लेट्स शेयर दोस आल्सो। या दीपिका, हैंड्स ओवर टू यू। Yeah. Is my screen visible? Subi? या इट इज। Yeah. As you all know, what are the application? We also show your projects. तो ये जो projects हैं, ये हमने अपने टाइम पे बनाए। तो जब तुम आओगे, एक्सप्लोर जितना करोगे उतना बेटर रहता है। एक्सप्लोर करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। खाली मैं एक पढ़ लूंगी चीज, कुछ फायदा नहीं है। जब तक मैं उसको खुद से लिख के नहीं देखूंगी कुछ, तभी मेरे को पता चलेगा कि मेरे को कितना आया। पढ़ाई में भी सेम यही है ना, कि जब तक टीचर ने तो बता दिया, लेकिन जब तक मैं उसे खुद से लिख के नहीं देखूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरे को आता भी या नहीं आता। तो ऐसे ही इसमें होता है,
जब तक तुम उसे खुद ट्राई नहीं करोगे ना, कुछ नहीं पता चलेगा। तुम्हें लगेगा कि मेरे को आता है, मैं कर लूंगा, एंड मोमेंट पे जब तुम करने बैठोगे ना, लगेगा कि हाँ ये तो रह गया। तो ऐसे ही है, जब तक प्रोजेक्ट नहीं, जब तक कुछ नहीं। तो बी या तो इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा साइंस इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं है, रीड आउट वाली बात है कि डेटा साइंस बेसिकली अपने कस्टमर के बेसिकली डिमांड को जानने में मदद करता है, ठीक है। और जो उनकी डिमांड्स होती है ना, एक्चुअली उसी डेटा को पकड़ करके ना, ठीक है, एक कस्टमर और एक बिजनेस एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। बिग डेटा जो है बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग फील्ड है, ठीक है, इसमें कोई अंत नहीं है। आज की डेट में 8 बिलियन पॉपुलेशन है, कल को 9 बिलियन हो जाएगी और डेटा बढ़ेगा, ठीक है। डेटा सीक्रेसी के इश्यूज आएंगे, डेटा प्राइवेसी के, डेटा ब्रीचिंग के इश्यूज आएंगे, ठीक है, डेटा सिक्योरिटी के भी इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो सिर्फ डेटा ही इतना बड़ा फील्ड हो जाएगा ना, जिसमें लाइक जॉब्स भी काफी ज्यादा अवेलेबल होंगी एंड एवरीथिंग इज लाइक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इट इज नॉट इजी, ठीक है, इट इज नॉट इजी एट ऑल, ठीक है, कि आपको इसके काफी रिसोर्सेज भी नहीं मिलेंगे आपको इसको। so B so B I think there is a misconnection and कोई नहीं, हम टेक ओवर करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा साइंस डिस्कस कर रहे थे। जैसे सुरभि बता रही थी कि सिक्योरिटी एंड डाटा साइंस का काफ़ी यूज़ होता है, तो ऐसे ही वेरियस फील्ड्स हैं जहाँ पे हम इस डाटा साइंस को यूज़ कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूँ, वहाँ पे भी कहाँ, अगर मेरी स्मार्ट वॉच है, मैं स्मार्ट वॉच में कैसे यूज़ होता है डाटा साइंस। स्मार्ट वॉच में डेली जो मेरी हार्ट बीट है, उसके बेसिस पे वो मेरे को बाद में ये बता देगा कि आपको हार्ट का बाद में कोई भी डिजीज का इश्यू होगा। मतलब वो मेरे को ये बता पा रहा है, मेरे डाटा को उसने कलेक्ट करा और फिर उसके बाद उसने मेरे को बता दिया कि आपको बाद में लेटर ऑन ये इश्यू हो सकता है। तो हेल्थ केयर में डाटा साइंस ऐसे हेल्पफुल रहते हैं। तो वो उसने पुराने रिकॉर्ड्स को यूज करके मेरे को एक इंफॉर्मेशन दे दी कि मैं उसने मेरे को बेसिकली क्या करा, उसने प्रेडिक्ट कर दिया कि बाद में आपको ये इश्यू हो सकता है। ऐसे ही ट्रेवल में हो सकता है। ट्रेवल में क्या है कि उसने मेरे को बता दिया कि लेटर ऑन यहाँ यहाँ, जैसे मैं पहले बता रही थी कि रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल लेके कि सेल्स को बढ़ा दिया जाए, ऐसे ही ट्रेवल में हो जाएगा कि अगर गोवा की बात करें, ऑफकोर्स गोवा समर में जाने का इतना मजा, तो गोवा में विंटर में हम जाते हैं कश्मीर, तो ट्रेवल वाली एजेंसी क्यों ना विंटर में इतने सारे वाउचर निकालेगी, इतने सब कुछ निकालेगी। जब कश्मीर का होगा, जब गोवा का होगा तो वो समर के निकालेगी। तो इन सब में पुराना जो रिकॉर्ड है उसको यूज करके उसने कुछ प्रेडिक्ट कर दिया और फिर उसने उसको फाइनली एक मॉडल के थ्रू कह सकते हैं कि उसने हमें रिजल्ट दे दिया, और वो रिजल्ट डेफिनेटली हेल्पफुल रहता है। तो डाटा साइंस में हम बेसिकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो एनालिसिस कैसा भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, प्रेडिक्टिव हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव में मैंने सिर्फ देखा कि क्या था, लेकिन प्रेडिक्टिव में क्या कि मैं पूरा एनालिसिस करके उसको एक फाइनल रिजल्ट दे दूंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। हमने सब कुछ देख लिया कि डाटा साइंस क्या है, उसकी लाइफ, उसके वेरियस स्टेप्स क्या है। इवन हमने आपको एग्जांपल्स, प्रोजेक्ट्स के आइडियाज दे दिए। देन उसके बाद हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ वेरियस फील्ड है। अब फाइनली बात करते हैं कि डाटा साइंस को करे तो करे कैसे, इसको करना है तो करे कैसे। तो डाटा साइंस का जो रोड मैप रहेगा, इसमें हम सबसे पहले हमें मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में पूरे मतलब इतनी ज्यादा नॉलेज हो कि नहीं, मीन मोड प्रोबेबिलिटी तुम बेसिक कर लोगे, सफिशिएंट है। मीन मोड ये तो हमने सीखा ही हुआ है, बस थोड़ा सा ही तो करना है, प्रैक्टिस ये करना है तुम्हें। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं तो पाइथन एंड आर दो लैंग्वेज होती है। अब पाइथन एंड आर में मैं कौन सी चॉइस करूं? पाइथन में रिकमेंड करना चाहूंगी, क्यों? क्योंकि इसके इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, मॉड्यूल्स है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहती है यूज करने में। लेटर उसके बाद आता है हमारा उसको विजुअलाइज करना। ठीक है, विजुअलाइज कर रहे हैं, उसको विजुअलाइज करने के लिए हमारे पास numpy एंड pandas ये सारी लाइब्रेरीज है। numpy panda ये तो करना ही पड़ेगा, numpy panda तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। numpy panda में तुम्हें डाटा फ्रेम,
जो टेबुलर है, क्योंकि डाटा तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में आएगा, तो उस टेबुलर फॉर्म को सॉल्व करने के लिए तुम्हें डाटा फ्रेम के जो होते हैं वो तुम्हें सीखने पड़ेंगे। डाटा कैसे हाइड किया जाता है, डाटा में कुछ मिसिंग है तो उसको कैसे करें, डाटा को रीड करना, राइट करना, ये सब थोड़ी थोड़ी बेसिक मॉड्यूल सीखनी पड़ेगी। ये नहीं कहूंगी सारा सीख लो, कुछ चीजें सीखते जाओ, उसके बाद जैसे जैसे लेटर ऑन तुम मूव करोगे ना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये यूजफुल थी, ये वाली कर लो। बेसिक सीख लो, जब प्रोजेक्ट बनाने लगोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वाली है, तो गूगल पे इसके बारे में देख लिया, देन उसको यूज कर लिया, जैसे जैसे यूज करोगे वो अपने आप याद होती जाएगी। क्योंकि इतनी ज्यादा है, इतने सारे हमारे पास होते हैं, उन सबको हम याद करें 100 की 100 तो हम याद नहीं कर सकते। आखिरकार हम ह्यूमन ही है, कोई एआई नहीं है, चैट जीपीटी नहीं है जो फटाफट एक तुम्हें प्लॉट करके दे दे, ठीक है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ऑफ कोर्स अगर बिग डाटा आता है उसमें टेक्निक लगानी पड़ेगी ही। अगर छोटा है तो उसको एक्सेल में करके खत्म कर दिया, लेकिन बड़ा डाटा है तो उसको कैसे करेंगे एनालिसिस, उसको कैसे क्लीन करेंगे, उसको कैसे रीड करेंगे, मशीन लर्निंग की टेक्निक तो देखनी पड़ेगी। देन फिफ्थ, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। बिना प्रोजेक्ट करे कैसे तुम सीख लोगे डाटा साइंस। कंपनी तुम्हें काम करने के लिए देगी, कुछ भी देगी, तो प्रोजेक्ट तो तुम्हें करना पड़ेगा। प्रोफाइल बनाना गिटअप पे, जैसे सुरभि दीदी ने अभी तुम्हें दिखाया कि उन्होंने अपना प्रोजेक्ट अपलोड करा, ऐसे ही प्रोजेक्ट जितना हो सके बना रहे हो उसको साइड बाय साइड प्रोफाइल अपनी गिटअप की एक अच्छी सी बना लो। मैंने ये जो इसका रोड मैप है, इसकी एक पीडीएफ है, वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसमें इसके जो मैंने ये 5 पॉइंट सेलिब्रेट, इनका पूरा वेल स्ट्रक्चर में है कि कहाँ से कौन सा करना बेटर रहेगा। अब मैंने प्रोग्रामिंग तो बता दी, पाइथन आर है एंड इसके अंदर तुम्हारे नमपाई पांडा है, तो उसमें तुम्हारे मिल जाएंगे कि अगर मेरे को प्रोग्रामिंग में पाइथन कर रही हूँ तो मेरे को कौन से सीखने हैं। वेरिएबल देख लेंगे हम, फंक्शंस देख लेंगे, लूप लगाना देख लेंगे, इफ एल्स वगैरह। तो तुम्हें वहां पे जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, उस पीडीएफ में तुम्हें इसके जो फर्दर जो रीड करने हैं उससे तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। रोड मैप में ये कहूंगी कहीं से भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं होती। रोड मैप आखिरकार है क्या, यही तो है कि एक रास्ता तो हर कोई बता देता है। अब वो जो रास्ता है, डिफरेंस क्या आता है, कोई ऑप्शनल चीजें भी बता देता है और कोई ऑप्शनल चीजें रहने देता है। लेकिन ऑप्शनल जो चीजें होती है ना, वो आखिरी में जब तुम जाते हो ना तो करते ही हो। अब तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो लेकिन ऑप्शनल चीज आ गई और तुमने जो रोड मैप फॉलो करा था उसके अंदर तो वो मेंशन ही नहीं थी, क्या तुम नहीं करोगे? करोगे ऑफ कोर्स, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तुम्हें, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उस रोड मैप को तो तुम फॉलो ही करोगे, राइट गाइस? अगर समझ आया तो एक बार थम्स अप कर दो यार। अब इसके बाद पॉइंट टू रिमेंबर, सुरभि, आयुष एक बार बताना, सुरभि कनेक्ट हो गई? हो गए थे बट वो वापस से डिस्कनेक्ट हो गए, तो अभी आप ही कंटिन्यू करो। ओके श्योर। पॉइंट टू रिमेंबर, ऑफ कोर्स काफी सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे ना सिर्फ डाटा साइंस के रिगार्डिंग बताऊंगी बल्कि जो करियर में भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। करियर की अगर मैं बात करूं तो जितना हो सके कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिना कम्युनिकेशन स्किल के, एग्जाम्पल क्या है इसका, बेसिकली एक के आते हैं 70% मार्क्स और एक के आते हैं 90% मार्क्स। 90% मार्क्स वाले की कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, वो कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका नहीं है। लेकिन 70% वाले का इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस है, इतनी बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल है। एंड इंटरव्यू के टाइम पे क्या होता है, जिसके 70% मार्क्स है उसका इंटरव्यू निकल जाता है। रीजन बिहाइंड इट कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया थी। नॉलेज थी कोई नहीं, 20% अप डाउन तो चलता ही रहता है, लेकिन उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि ना आने के बाद भी उसने अपने आंसर को कुछ ऐसे वे में कर दिया कि जो सामने इंस्ट्रक्टर है ना उससे देख लिया कि हाँ भाई बंदे में नॉलेज भी थी। 70% नॉलेज कम नहीं होती आज के टाइम में, ठीक है। फिर उसके बाद उसके पास उसकी कम्युनिकेशन भी थी। तो कम्युनिकेशन स्किल जितना हो सके ना अपने ईयर में, अपना जो ये तुम जो भी डिग्री कर रहे हो उसके टाइम में अपना उसे डेवलप करो, राइट। डाटा साइंस के रिगार्डिंग अगर बात करूं, कोई भी फील्ड है बेसिकली, डाटा साइंस ही नहीं, प्रोजेक्ट तो सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है। प्रोजेक्ट जितना हो सके प्रैक्टिस करो,
तुमने कुछ बेसिक सीखा, बेसिक के बाद तुम छोटा से एक प्लेटफॉर्म ला रहे हो। अब जैसे तुम वेब सीखते हो, तो वेब सीखने के बाद तुमने उसमें फॉर्म बनाना, पहला स्टेप क्या था, फॉर्म बना लेते हैं। तुमने बेसिक सीखा, फॉर्म बनाया, उसके बाद तुम एक वेबसाइट बड़ी बनाते हो, फिर उससे बड़ा रेशो। तो बेसिकली ऐसे ही है कि थोड़ा थोड़ा भी सीख रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा उसको प्रैक्टिस करते रहो। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। जैसे डीएस से ही देख लो, अगर डीएस से मैंने 1 महीना बीच में छोड़ दी ना, तो वो ऐसा लगता है कि मैंने जो पहले याद करा था वो तो सब कुछ छूट गया। तो ऐसे ही हर फील्ड में रहता है, जितना हो सके साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहो। अब तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तुम्हें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। ये जो हम पाठ बता रहे हैं, इनको देखो, सारी सेशंस को अटेंड करो, जिससे तुम्हें ये पता चले कि कितने किस डोमेन में क्या है और क्या राइट पाथ है, किसको मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। हर चीज को एक्सप्लोर करो, लेकिन इतना भी मत करना एक्सप्लोर कि सभी तुम एक्सप्लोर कर रहे थे, सेकेंड ईयर भी चला गया लेकिन तुम्हारा अभी तक टेक डोमेन ढंग से डिसाइड नहीं हुआ। एक्सप्लोर करो, टाइम लिमिट में करो, देन फाइनली अपना डिसीजन बनाओ। डिसीजन बनाने के बाद उस पे काम करना स्टार्ट करो, उसको सीखो, सीखने के बाद उसको यूज भी करो। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, तुमने स्किल बना ली, तुमने कम्युनिकेशन भी कर लिया, तुम्हारे प्रोजेक्ट भी हो गए, फिर आती है तुम्हारी प्रोफाइल। प्रोफाइल सबसे इम्पोर्टेंट, जो तुम अपना रिज्यूमे में लिंक्डइन, आजकल लिंक्डइन पे अपना गेट हब, इन्हें साइड का साइड करते रहो। इनको छोटी से छोटी चीज, अगर तुमने कुछ इवेंट सेशन, तुम्हारे सर्टिफिकेट्स हैं, तुम कोई कोर्स कर रहे हो, उसको उस लिंक्डइन पे अपडेट करते रहो। ठीक है, लिंक्डइन पे तुम अपडेट करोगे तो तुम आगे जो तुम्हारी कंपनी होगी देखेंगे, तो थोड़ा सा उसका इम्पेक्ट रहता है। साथ 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 पढ़ना भी है, यही नहीं कभी तुम टेक में ही घुस गए और कॉलेज की तो पढ़ाई करी ही नहीं, कॉलेज के तो ठन ठन गोपाल हो गए। नहीं, कॉलेज की भी पढ़ाई करनी है, साथ साथ अपना टेक टेक भी करना है। तो लाइफ में कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर तुमने कुछ सेक्रीफाइस नहीं करा ना अपने गोल के लिए, तो आखिरी में जो तुम्हारा गोल है ना, वही सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो कुछ एक्चुअली अब या नहीं, दैट वाज गुड। तो एक्चुअली अभी हम लोग ना डाउट्स ले लेते हैं बिकॉज मेरा नेट एक्चुअली फ्लक्चुएट कर रहा है काफी ज्यादा। हाँ, पॉइंट तो बहुत कुछ या है, आते जाते रहते हैं। एट या लास्ट, थैंक यू। हाँ, एक और पॉइंट रह गया, ऑलवेज स्टे अपडेटेड विद ऑनगोइंग रिसर्च। रिसर्च मतलब जो लेटेस्ट है उसके साथ अपडेट रहना या बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली न्यू फील्ड्स लाइक एआई एमएल और डीएस में अगर आप रिसर्च या इस तरीके से रिसर्च में नहीं है ना, तो इसका मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये चीजें ना ऐसे लगता है हर 2 महीने बाद चेंज हो जाएगी, डेटा हर 2 महीने बाद चेंज हो जाएगा। एआई जो होगा वो 2 महीने पहले जो ट्रेंड हुआ है वो 2 महीने बाद के न्यू डेटा पे अलग अलग ही ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। तो इट इज लाइक आज के डेट में जो डेटा चेंज हो रहा है हर सेकंड, बीतते सेकंड के साथ चेंज हो जाए। तो डाउट सेशंस देखते हैं। Thank you everyone. And I'm sure after this, you all are ready to kickstart your journey in the field of data science. And if anyone has any doubts, kindly use the raise hand option in the team so that we can permit you to use your mic. I'll also encourage everyone to scan the QR code so that you can avail the certificate for the session. And meanwhile, you can also take the screenshot of the session and you share it on your social media handles, and do not forget to tag NSCC So please, anyone, if anyone here has doubts, please raise your hand and we'll allow you to ask your doubt. Hello. Hello. Am I audible? Yes, you are audible. So can you share some resources for the research in AI, ML or data science, that region? Yeah, sorry, what you are asking? I am asking for, give me some, can you share some resources that help me to research or
on Yeah, this yeah. domain? We have a PDF in which we have our resources for it. Roadmap basically जो मैंने roadmap अभी तुम्हें 5 स्टेप बताए थे, मैंने उस PDF Yeah. के अंदर वो काफी ब्रीफली है एंड रिसोर्सेज उसके अंदर है. श्योरली वो ग्रुप पे मैं कर दूंगी, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं ग्रुप पे वो PDF श्योरली शेयर कर दूंगी. कौन सा ग्रुप में? वो मैं ग्रुप में ज्वाइन है टेक्स एक्स. हाँ या उसी ग्रुप में ना? या डाउट वाला ग्रुप भी शेयर कर लीजिए, अगर आपको फर्दर कोई डाउट आता है तो इसमें कर देंगे एंड श्योरली मैं शेयर कर. डाउट ग्रुप मतलब ये जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन क्यूआर करके. हाँ स्क्रीन पे शो रहा है. And this is a great session I have attended. Can you tell me how can I connect it with you? You all three, those who have conducted the session. जाके ग्रुप पे हम आपको अवेलेबल रहेंगे. आपको पर्सनली भी अगर कोई डाउट हो, ग्रुप पे हमारा कांटेक्ट है, आप वहां से कर सकते हैं. Okay, thank you. Anyone else? Hello. Hello. Am I audible? Yeah. मैम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में डिफरेंस? देखो पहली बात तो मैं मैम हूँ भी ठीक है, दी बोल लो वही ठीक है. एंड डाटा साइंस एंड एमएल में मेन डिफरेंस क्या आता है? एमएल में टोटली तुम एक एल्गो यूज करते हो, तुम एक टेक्निक यूज करते हो, लेकिन जो तुम्हारा डाटा साइंस है ना, वो उन टेक्निक के बिना भी हो सकता है. अगर डाटा हमारा बहुत छोटा है ना, तुम एमएल की टेक्निक ना यूज करके भी मैं उस डाटा को सॉल्व कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो. लेकिन एमएल वाला क्या करेगा? उसने जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके कुछ एल्गो टेक्निक लगाए, उस एल्गो टेक्निक के थ्रू उसने हमें एक ऐसी मशीन प्रोवाइड करी जो कि सॉल्व कर दे. लेकिन डाटा साइंस में क्या होता है कि तुम्हारा एक डाटा है, उसको एनालाइज करते हो, उसको क्लीन करते हो, विजुअलाइज करते हो. कोई जरूरी नहीं है कि तुम एमएल वाली टेक्निक भी डाटा साइंस के अंदर यूज करो. डाटा साइंस में दो मैंने डाटा बताए थे, एक होता है छोटा डाटा, एक होता है बिग डाटा. बिग डाटा के टाइम पे तुम्हें एमएल की टेक्निक को यूज करना पड़ेगा. मतलब डाटा साइंस के अंदर फर्दर तुम्हें एमएल थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. मैंने बोला था कि थोड़ा सा, उसके रोड मैप में भी मेंशन करा था कि एमएल की कुछ टेक्निक तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ह्यूज जब बड़ा डाटा होगा, बहुत बिग डाटा होगा, तो उस टाइम पे तुम्हें एमएल की थोड़ी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी. जैसे मैंने रिकमेंडेशन इंजन था, तो रिकमेंडेशन इंजन में उन्होंने एमएल की टेक्निक को यूज किया है. हाइब्रिड रिकमेंडेशन सिस्टम तभी तो बना तब उसने एमएल की कंटेंट एंड कैलिब्रेटिव यूज करके उसने फर्दर बनाया. लेकिन अगर मेरा डाटा ही छोटा है तो मेरे को एमएल को यूज ही नहीं करना. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे मैंने करा और उसको कर दिया स्मूथली. तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब एक और क्वेश्चन है कि अगर मुझे रिसर्च इंटर्नशिप के लिए किसी प्रोफेसर के अंडर रिसर्च इंटर्नशिप करना है तो मैथ्स कितना डिग्री पढ़ना होगा? देखो वो सबसे पहले तो रिसर्च पे भी डिपेंड एमएल करता में? है. किस पे? एमएल में? एमएल के फील्ड में हाँ अगर रिसर्च करना है. एमएल के फील्ड में अगर तुम्हें रिसर्च करनी है तो थोड़ा मैथ और स्टैटिस्टिक्स ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर एल्गो होती है और वो एल्गो जो होती है उनके अंदर स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल लगता है. जो मैंने वेक्टर है मैं बनाती हूँ, तो थोड़ी सी एल्गो स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा. एक है यूट्यूब चैनल जिसमें उसने स्टैटिस्टिक्स काफी बढ़िया बताए हैं. मेरे को अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं उसके लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप पे. उसमें उसने जो सेलेक्टिव टॉपिक्स है ना, लीनियर अलजेब्रा हो गया, बाइनोमियल हो गया एंड कुछ कैलकुलस हो गए, तो जो एमएल से रिलेटेड है ना टॉपिक्स, उसको उसने काफी डिटेल्ड बताया हुआ है. मतलब वो हेल्पफुल है. तो एमएल के लिए अगर तुम रिसर्च कर रहे हो तो फॉर श्योर तुम्हें थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में
करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अगर तुम डाटा साइंस में जा रहे हो तो रिसर्च मतलब स्टैटिस्टिक्स इतना नहीं देखना, मीन मोड देख लिया सफिशिएंट है। लेकिन अगर एमएल रिसर्च पेज है तो फिर तुम्हें थोड़ा डाटा स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा। उसमें लीनियर अलजेब्रा है, बाइनोमियल है, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है, देन मीन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, ये थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे जो तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में बीटेक में हमें पढ़ाए गए थे, मैथ में पढ़ाए थे उन्होंने था। और बाइनोमियल, पॉइजन्स थी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़े से टॉपिक देखने पड़ते हैं। वो मैं लिंक शेयर कर दूंगी उस चैनल की, उसमें उसने काफी सही बताया हुआ है। तो आई होप जिसका भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। लिंक जो मैं बता रही हूँ, पीडीएफ जो बता रही हूँ, वो मैं फॉर श्योर ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। और अभी याद करूँ तो आई गेस 3 ब्लू करके कुछ था, 3 ब्लू, एक मिनट देख ही लेती हूँ। हाँ, 3 ब्लू 1 ब्राउन, ये यूट्यूब चैनल है। जिसका भी डाउट था वो प्लीज, और भी किसी का डाउट होगा, ये एमएल के रिसर्च बहुत आते हैं, सबका मन करता है कि एमएल पे रिसर्च करे, तो 3 ब्लू 1 ब्राउन स्टैटिस्टिक्स के लिए अच्छा चैनल है यूट्यूब पे। उस पे है, उस पे काफी सही वीडियोस डाली हुई हैं जो कि समझ आ सकते हैं। एनीवन एल्स? और प्लीज हमारे लिंक को फॉलो करें सभी। हमारे फीडबैक फॉर्म जरूर भर देना, सर्टिफिकेट लेना है तो जरूर फीडबैक फॉर्म भर देना। और डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लो। डाउट अभी नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते फॉर श्योर। जब मैं क्लास में बैठी हूँ तो सामने मेरे को डाउट नहीं आता, लेकिन घर जाके जब मैं कॉपी खोलती हूँ तो मेरे को डाउट आता है, फिर मैं क्वेश्चन मार्क। तो डाउट ग्रुप फॉर श्योर ज्वाइन कर लो।